Hello students, so welcoming all of you to my next video. So this is a video on class 9th math book from NCERT, and we are in chapter 6 lines and angles. So far we have completed about transversal lines, parallel lines cut by a transversal and the theorems related to those transversal line and parallel lines. Okay, now in this video we will solve some of the geometrical problems taken from your example and as well as from your exercise. So this example you can see on the screen is from example, this is a question from your example number 6. Okay, so now I'm not going to solve it in a whole process. I just roughly tell you how to solve it. You have to do by yourself. Okay, now read out the question. So question says in figure, so you have given with a figure right here. So in figure, AB is parallel to CD, AB parallel to CD, and CD parallel to EF. That means ultimately AB parallel to CD, CD parallel to EF. That means AB parallel to EF. Okay. Also, EA perpendicular to AB. मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनता है. ठीक है. So this is 90 degree. Okay, if BEF, so angle BEF is 55 degree, find the values of X, Y and Z. X, Y and Z. So what you have to do is, you can do it in many ways, but since you have learned some of the theorem related to parallel lines and transversals, so you have to use those. Okay, so for now you can see these three lines are parallel. So अगर अभी यहाँ पे देखो सी डी पैरेलल टू ई एफ, अगर डी ई ट्रांसवर्शल होता है, सो ये एंगल मतलब एंगल 55 डिग्री एंड एंगल वाई विल बी द टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब the interior angles on the same side of a transversal, and you know the sum of the interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. So you can find y plus 55 degree is equal to 180 degree. So for now we know you are given CD parallel to EF, for which ultimately these two angles and CD parallel to EF and ED is the transversal. So this angle plus this angle is equal to 180 degree. Y plus 55 degree is equal to 180 degree. From here you can get y is equal to 180 degree minus 55 degree. You have to get it. Okay, now आपको y मिल गया. अभी देखो AB parallel CD, again we have AB parallel CD. अगर इसे हम ट्रांसवर्शल बनाते हैं, इस तरह से फिगर देखो, AB parallel to CD and ये ट्रांसवर्शल हुआ, तो again this angle and this angle will be corresponding angles. और हमें पता है दो पैरेलल लाइंस, when two parallel lines cut by a transversal, the corresponding angles are equal. That means x angle is equal to y angle. क्यों? corresponding है ये, corresponding angles. ठीक है. So that means इस यहाँ पे आपको y मिल गया होगा, यहाँ पे आपको x भी मिल गया. ठीक है. अगर x मिल गया तो x के इस साइड में जो एंगल है ये भी मिल जाएगा आराम से. कैसे मिलेगा? क्योंकि x एंड ये एंगल मिलकर 180 डिग्री होते हैं, लीनियर पेयर. या फिर आप लिख सकते हो कि रे के ऊपर और एक लाइन के ऊपर और एक रे स्टैंड किया है. दैट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 180 डिग्री. तो ये एंगल मिल गया आपको. अभी लुक एट दिस ट्रायंगल, द होल ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है ई ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये 90 डिग्री है. अभी ये एंगल आपको मिल गया क्योंकि x मिल गया, तो ये ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हो. तो दैट मीन्स ये प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. इस एंगल में से आप 180 जेड का वैल्यू निकाल सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन. Now this is your next question, and this question is from your exercise, and the question is question number 1. So here also you are given with a figure. In figure find the value of x and y. आपको यहाँ पे x and y का वैल्यू निकालना है, and then उसके बाद शो करना है कि AB पैरेलल CD. आपको x and y का वैल्यू निकालना है. अभी तक AB and CD पैरेलल नहीं है. ठीक है.
दैट मीन्स यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको शो करना है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो इनमें से किसी एक एंगल को आपको इक्वल करना है, ठीक है। सो नाउ फॉर नाउ लुक, ए बी सी डी आर टू पैरेलल, सॉरी ओनली लाइन्स, दे आर नॉट पैरेलल लाइन्स, ओनली लाइन्स कट बाई दिस ट्रांसवर्सल। इसका नाम कुछ नहीं दिया गया है। लेट्स सपोज हमने इसे ई एफ ले लिया, ठीक है। सो ई एफ यहाँ पे सपोज इसे दे देते हैं एस टी, एस एंड दिस पॉइंट इज टी। ओके ना लुक, ई एफ एक लाइन है जिसके ऊपर एस एस स्टैंड कर रहा है। दैट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 50 हुआ तो ये एंगल कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा। लीनियर पेयर एग्जाम, ओके ना। ये 30 डिग्री हो गया, एक्स जो है मेरा 30 डिग्री निकल गया। लुक एट दिस, यहाँ पे जो पॉइंट है 130 डिग्री, ये जो y है ये 130 डिग्री का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला थ्योरम पढ़ा है। दैट मीन्स ये 30 डिग्री हुआ तो y का वैल्यू भी 130 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स हमें x का वैल्यू 130 डिग्री मिला, y का वैल्यू भी 130 डिग्री मिला। अभी लुक, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर x and y are situated in such a way that they form alternate angles। ये दोनों alternate angles हैं और हमारे लिए अभी ये दोनों alternate angles equal हो गए। तो जब alternate angles equal होते हैं that means ultimately those two lines will be parallel। आपको alternate angle theorem याद होगा, ये converse है। converse बोलता है कि when two lines are cut via, when two lines are cut via transversal such that the alternate angles are equal, then the two lines are parallel। अब यहाँ पे आपका alternate angle equal हो गया, that means those two lines are parallel। ये प्रूव कर सकते हो। इसे आपको प्रोसेस अच्छे से लिखना है, क्योंकि मैं समझा रही हूँ तो आई जस्ट make you understand by saying it roughly only, okay। So let's move towards our next question। This is our next question and this question is from the exercise and the question is question number 6, okay। And this is a very interesting question because here you have to use some of the science knowledge also। In figure PQ and RS are two mirrors, okay। यहाँ पे two mirrors PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B, AB strikes PQ at point B and it gets reflected, okay। क्वेश्चन में यही दिया गया है, ये रिफ्लेक्ट होता है BC। अगेन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जाकर सेकेंड मिरर को C पे क्या करता है, इंसिडेंट होता है ना। C से क्या होगा, वो अगेन रिफ्लेक्ट होता है, मिरर है मतलब रिफ्लेक्ट होगा। सो यहाँ पे A आता है और लुक द एरो मार्क इज towards the direction of flow of light, okay। So A incidents at B, sorry AB incidents at B, again the reflected at BC goes and the again incidents on point C and the again reflects at CD। So आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर ये सब आता है, ठीक है। सो इस तरह से ये फिगर जो है मैंने एक्सप्लेन कर लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब जो पहला सबसे पहले इंसिडेंट किया था और सबसे लास्ट में रिफ्लेक्ट हुआ है वो दोनों रे जो है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, या तो फिर आपको अल्टरनेट एंगल इक्वल करो या तो फिर आप करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करो। तो करने के लिए हमें कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी यूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिरर के बारे में दिया गया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। सपोज आई हैव ड्रॉन BM एंड CN, दोनों परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। सो आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट एंगल होता है, सो परपेंडिकुलर के साथ यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्रिएट हुआ, एंगल 1 इज योर इंसिडेंट एंगल, और ये आपका हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल 2। अगेन सेकंड यहाँ पर भी क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये वाला अभी आकर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, एंगल 3, एंड दिस वन इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल 4 सपोज, ओके। सो आप टू राइट लाइक दिस, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, ये प्रोसेस यूज़ करना है। मैं रफली समझा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ इसके हिसाब से एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ पे I क्या है, इंसिडेंट एंगल, R है रिफ्लेक्टेड एंगल, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 होगा, इक्वेशन 1 है मेरा। अगेन 3 इज इक्वल टू 4 होगा क्योंकि सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पर भी इंसिडेंट एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको मिल गया। नेक्स्ट एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल रेज, राइट। सो इन पैरेलल रेज के बीच में हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है और परपेंडिकुलर है पैरेलल लाइंस के ऊपर। दैट मीन्स बी एम एंड एन सी आर नाउ पैरेलल। अभी आप देखो इस तरह से, ये दोनों पैरेलल लाइन हुए, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। सो उसी तरह इस साइड से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे बोथ साइड में। तो अभी देखो इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों ऑटोमेटिकली पैरेलल बनते हैं। इसी को यहाँ पे यूज़ करो, ये पैरेलल लाइंस है और ये पैरेलल लाइंस है और ये उनके बीच में हमने जो परपेंडिकुलर बनाया है, इसी वजह से बी एम एंड एन सी ये दोनों पैरेलल बन जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फिगर वी हैव ड्रन बी एम पैरेलल टू एन सी। अगर बी एम पैरेलल टू एन सी बन जाता है एंड बी सी ट्रांसवर्सल होता है सो ऑटोमेटिकली हमें पता है पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल होता है वहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। So 2 and 3 are alternate angles for them. So angle 2 will be equal to angle 3. Okay. Now just observe those relationships you have drawn. 1 is equal to 2, 2 is equal to 3, 3 is equal to 4. That means therefore we get one angle is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4. ये सारा का सारा एंगल जो है वो सब इक्वल हैं। ओके, अगर ये सब इक्वल हैं, क्या हम इनमें से एक ऐसी चीज़ निकाल सकते हैं कि एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4। सो एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4। इस इक्वेशन हम बना सकते हैं, अल्टीमेटली बन जाते हैं क्योंकि ये सारा का सारा एंगल्स जो है इक्वल है। अभी देखो एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4, राइट। सो ये दोनों भी तो अल्टरनेट एंगल जैसे हैं। किसके लिए अल्टरनेट है, कब अल्टरनेट है, जब ए बी एंड सी डी आर लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल बी सी, देन अल्टरनेट एंगल फॉर्म्स इज दिस एंगल 1 + 2 एंड 3 + 4। सो क्योंकि ये दोनों 1 + 2 को हम क्या नाम दे सकते हैं, ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। देयरफॉर since these are alternate angles, so therefore AB पैरेलल CD। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। ओके, इन दिस वे these are very easy questions actually. The questions regarding your lines, parallel lines and transversal are easier, okay, comparatively others. So you can just use your previously learned theorem to solve them. Just go through it, do practice, it'll be easier. Thank you.